नहीं होता. It is similar to MBBS test in a way that we have the three sciences, biology, chemistry, and physics. Plus, we have the mathematics portion, and then we have English portion, which is not an MBBS test, but we do have a BSc test. So, if we talk about the number of MCQs, then we have 20 MCQs for biology, 20 for chemistry, 20 for physics, 20 for mathematics, and 60 MCQs for English. So, I guess many of you are like now preparing for your board exams if you are in your intermediate. And many of you can be gap year students, and that's completely fine. So, आप लोग जो इंटरमीडिएट में हो, आप लोग ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो. सो लेट मी क्लियरिफाई वन थिंग दैट स्टूडेंट्स आर सो मच स्टक विद, दैट दे थिंक दैट the test which we give for AKU and the preparation we do for board exams are two separate things. Actually, they're not. To talk about the entry test, then it is quite similar to what we prepare for board exams. That's my personal experience that हम जो board exams के लिए पढ़ते हैं और जो तैयारी करते हैं, the books we read for our intermediate are all of those concepts come in, nothing more than that. So agar aap gap year student ho, so maybe you guys have read all of those books, you guys have already started the preparation. Even if you haven't started the preparation, you do have plenty of time, and don't panic, it's never too late. You can start now as well. So आप लोग जिस भी बोर्ड से हो, AKU बोर्ड से हो, पेशावर बोर्ड से हो, सिंध बोर्ड से हो, फेडरल बोर्ड से हो, whatever board you are in. Is anyone wanting to talk? What's happening? Mute your mic. Okay. So, whatever board you're in, आपके जो books हैं, concentrate on them for BSc program. You don't need to read any extra books because that's my personal experience. आप खुद को परेशान ना करें कि मुझे वो वाला book पढ़ना होगा, ये वाला पढ़ना होगा. And जैसे कि हमारे previous session में भी ये चीज़ discuss हुई, randomly picking every single thing and reading them and making a mess inside your mind. And by the end of the day, you will be confused that मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या important था, क्या नहीं था. So don't confuse yourself with those stuff. I would recommend you that you focus on whatever board you're in, the books of that. That's it. So जब उनको पढ़ते हो, उनके concepts revise करते हो, I would suggest to not cram. Just sit down and clear your concepts. That is the basic thing you need to do. When you are conceptually clear, then the test would be like very easy for you to ace. So टेस्ट में एक्चुअली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बट सारा आपके बुक से ही आता है, आपके इंटरमीडिएट के बुक से ही आता है, तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट सो द साइंसेस आर कवर्ड इन दैट. इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, एज वी ऑल आर फ्रॉम प्री मेडिकल बैकग्राउंड्स, सो इट बिकम्स अ बिट हार्ड फॉर अस. Whenever we talk about maths, we all are so scared कि अब हमारा क्या होगा. So for mathematics, I'd recommend कि आप लोग 7-8 के जो जैसे पुराने सेशन में डिस्कस हुआ कि मैथ वाइज के जो books होते हैं, you can read them to clear concepts. You can also read Panda maths, that's really good. But आता बेसिक मैथ्स है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत ही इजी मैथ्स आता है. आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करें. I know that in our intermediate we remain so much far away from mathematics. We don't read it in our course. So that's the reason we are confused with the basic concepts as well. But if we try to do a little bit of practice and just revise our basic concepts, then easily we can ace the maths portion as well. Now let's come to the English portion. So for English portion, you can there is a book named as Wren and Martin, a grammar book. You can take that out and like revise some of the main topics in English. Like बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है because you're not giving SAT test. So वहाँ पर भी basic grammar आता है. So अगर आपका grammar already clear है, so it's well and good. You don't need to read anything. अगर आपका grammar थोड़ा सा उसमें मसला है, so you do have that book. Okay, I'd recommend to read Wren
एंड मार्टिन, अगर वो आपके पास नहीं है, मे बी SAT इंग्लिश, आई गेस दैट वुड बी ऑफ वेरी एडवांस लेवल. इतना भी आपने वो नहीं करना होता, इजी इंग्लिश आता है, बट यू हैव 60 मार्क्स फॉर दैट, सॉरी 60 MCQs फॉर दैट. सो देन बाद में जो कट ऑफ्स बनते हैं ना, तो साइंसेस के एक साथ बनते हैं, मैथ्स का अलग से बनता है और इंग्लिश का अलग से बनता है. So you have to give efforts for all of these three parts. Sometimes students make a mistake that they focus one portion too much. जैसे कि you can take an example that many students might focus on mathematics portion too much, thinking that ये हमारे कोर्स में नहीं है, हम इसी को ज़्यादा focus करेंगे. And when they go to the rest, they end up messing up the other portions, maybe English or sciences. So give equal efforts to all of them, because all of them matter when it comes to the merit list. All of them have cutoffs separately, so un sab pe aap focus karo. So like yeah, that's what I had done. I hadn't read any sort of extras. I guess the FSs are more than enough, and yeah, that's it. Over to you, Ghazi. ओके सो सबसे पहले तो टेस्ट के हवाले से मैं भी थोड़ा बताता चलूं कि आई गेस आप लोगों में से ज़्यादातर तो MBBS के भी टेस्ट दे रहे होंगे. कितने आप लोगों में से MBBS के टेस्ट दे रहे हैं, ज़रा हैंड रेस करें. जो MBBS के टेस्ट दे रहे हैं हैंड रेस करें, ज़रा हमें अंदाज़ा हो कितने लोग MBBS के भी टेस्ट दे रहे हैं. Yes, mashallah, many of them are preparing for MBBS as well. Yeah, So that's great. उनके लिए तो और भी आसानी होगी, क्योंकि जब आप MBBS के लिए तैयारी करेंगे तो BSN का लोगों को बहुत बेसिक लगेगा. सही है. मैंने खुद MBBS के लिए तैयारी करी थी, तो BSN का मुझे बहुत इजी लगा. टेस्ट भी और काफ़ी मेरे मार्क्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए थे टेस्ट में. सो प्रिपेयर करने का तरीका यह है कि आपने कॉन्सेप्चुअली करना है. रट्टे वाली चीज़ें आपको आएंगी ही नहीं, मतलब फ़ायदा नहीं होगा रट्टे वाली चीज़ें करने का. सो कॉन्सेप्चुअली अपने आप को क्लियर करना है जितना हो सके, स्पेशली बायोलॉजी और फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में ज़्यादातर रट्टे वाली चीज़ें ही हैं. आई गेस जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करें, और रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के हवाले से. सो मैकेनिज्म्स इन अ सेंस कि आपको रिएक्टेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है, प्रोडक्ट क्या बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनता है. सही है. तो उसके बाद में आता हूँ इंटरव्यू की तरफ. सो इंटरव्यू इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता. इंटरव्यू थोड़ा सा बेसिक टाइप का होता है. इंग्लिश आपकी टेस्ट की जाती है इंटरव्यू में थोड़ी सी. सही है. सो इंटरव्यू में बाकी चीज़ें ये होती हैं कि आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा जज किया जाता है, और इसके अलावा आपके स्पीकिंग एंड इंग्लिश एज वेल. सो थोड़े बहुत सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं वहाँ पे. सो उनके हवाले से अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करें, और इंटरव्यू ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. गेस अप टू यू ज़ैनब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो. Okay. So yeah, Ghazi is right. Interview is not really complicated. If you are able to clear the test, then interview is really easy, I guess. Because वहाँ पर जैसे Ghazi ने बोला, it's very good if you use English over there, but it's not mandatory. Like it's optional. आप bilingual हो सकते हैं. Actually, what they do test is like, what is your philosophy and how do you think about different stuff. They don't test के what language do you talk. वो आप इधर आके बाद में डेवलप कर सकते हो, बट वो आपके थिंकिंग को चेक करते हैं, आपके थॉट्स को चेक करते हैं कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करता है या करती है. सो लाइक Ghazi talked about scenario based questions. So वो आपको कोई scenario देते हैं. For example, let me give an example so you'll get an idea. For example, they had asked me that अगर आप एक ग्रुप में हो
एंड आप लोग एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, वहां पर एक डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल है आपके ग्रुप में एंड द अदर ग्रुप मेंबर्स आर मेकिंग फन ऑफ दैट पर्सन, अब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? हाउ विल यू डील विद दैट? बिकॉज आप मिलकर उनके साथ उसका मजाक तो क्यों उड़ाओगे, राइट? सो how will you respond to that situation and how will you cope with that and how will you protect that differently abled individual? So such sort of scenarios are given to you because nursing is a profession where empathy is so much important, so much essential. It is all made up of empathy. So they check that कि तुम्हारे अंदर वो empathy की component कितनी है and they check that कि आप कितना मतलब difficult situations के साथ deal कर सकते हो, cope कर सकते हो. So as I gave examples, scenario based questions इस तरह से आते हैं. Then they ask about your personal interests, they ask about your hobbies, and they try to ask and relate कि आपके hobbies इस प्रोफेशन के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि आई हैड गिवन एन एग्जांपल इन माय इंटरव्यू दैट आई एम पार्ट ऑफ गर्ल गाइडिंग इन माय विलेज. So many of you might be a part of them and many of you might be part of Scouts or maybe any other volunteering initiative. So if you people are, then आप लोग वहाँ पर ये चीज़ mention कर सकते हो that as I am already involved in such stuff. So मैं इस चीज़ को एज अ करियर भी परस्यू करना चाहती थी या चाहता था. सो आई सो दैट थिंग इनसाइड नर्सिंग. So इसमें भी एक सर्विस है, उसमें भी एक सर्विस है. So how what you do in your life, what are your hobbies, what are your interests, and how that relates to what you have chosen in your life. That thing matters for them a lot. आपके सामने एक क्लियर इनिशिएटिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका कहीं पर नहीं हुआ तो आप वहाँ पर आ गए. You have to show them that you have a connection. You have kind of hobbies that relate with this goal and then you have came here. और फिर वो आपके फ्यूचर के बारे में भी आपसे पूछते हैं that if you complete your Bachelor's of Science in Nursing at Aga Khan University after 10 years, where do you see yourself? So आप वहाँ पर उनको बताते हो कि आपके क्या प्लानिंग्स है. सो दे चेक दैट कि आपने कितना अपने माइंड को क्लियर किया है अपने गोल्स और अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग. ओके. So one more thing I wanted to add regarding the entry test. आप लोग फिजिक्स के बारे में आई वुड लाइक टू से दैट जैसे काजी ने बोला कि केमिस्ट्री में ज्यादा वो नहीं आते जो कॉम्प्लिकेटेड है. सो इसी तरह फिजिक्स में भी वो कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस नहीं आते. So if you guys are confused with them, that because I myself seen that derivations they're so hectic, so you don't have to mess up your mind with those derivations. They don't come at all. Very simple questions come, very simple formulas are checked. So go for the basic concepts. Don't get entangled with those difficult derivations and blah blah. Yeah, over to you, Ghazi. So जितना बोलना था हम बोल चुके हैं. अब आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो हैंड रेस कर सकते हो. Teacher, I can go in an assistant coaching or certification. Gilbert, audible Danish. I'm sorry. Can you please repeat your question? मैं assistant coaching जाती फर्स्ट ईयर में, अब मैं सेकंड ईयर में जाऊंगी और मेरे साथ में आप एप्टीट्यूड एमडी के प्रिपरेशन करो तो आपका बीएसएम टेस्ट आगा खान क्लियर होगा. अभी मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फोकस करना चाहिए. अभी मतलब ये टेस्ट प्रिपरेशन आईएएस आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे तो एंट्री टेस्ट में आपको ज्यादा मुश्किल होंगे. अभी से उन चीजों के पीछे ना पड़े और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे. सही है. तो बाद में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और अभी से एकेडमी ज्वाइन करने की तो आईएएस जरूरत ही नहीं है, स्पेशली नर्सिंग के लिए. It's not mandatory. Yeah, it's not necessary at all. जैसे previous session में discuss हुआ, जैसे मैं तो कोई भी academy join नहीं की थी. It was all my own preparation. So I would say if you're preparing for your board exams, if you are in your intermediate, just clear those concepts. That's what comes. Nothing else. वो कहीं और नहीं लेके आते. It's all in your intermediate books. And अगर आप वो सही से पढ़ते हो, अगर आपके concepts clear हैं, तो बहुत ही conceptual चीजें आती हैं. They check your concept. So like yeah, go for them, read them properly. Don't confuse.
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जो साइंस क्वेश्चन होता है उसमें इंग्लिश के ज्यादा किस तरह के सवाल आते हैं, जरा गाइड करें। तो साइंस पोर्शन में ऐसा होता है ना कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रट्टे वाली चीजें आती नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि कैन यू एग्जांपल Should I give? यस Okay, for example, in the biology portion, there was a question I remember, Ghazi, that there was the diagram of hip joint, where it was like clearly visible that what joint is in here, and then there was a question that which joint is present in this diagram. So if you have the knowledge of the shapes of joints, which is a very basic thing if you read your intermediate books, so you'll definitely get that is ball and socket joint. So इस तरह का एक वहाँ पर वो आया था, like there was diagram of uterus and there were given arrows and you had to label those parts. I mean इस तरह के basic questions आते हैं. There are no complicated questions. Like they ask about there was a question that what bond is formed between COOH and NH2. So as we have read that the amino acids make a peptide bond. So that was its answer. Means complicated चीजें आती नहीं है. It's all conceptual and easy. अगर आप लोगों ने एमबीबीएस की तैयारी करी है ना तो इट इज मोर देन इनफ। मैंने जो एमबीबीएस की तैयारी की थी उसी से मेरा क्लियर हो गया, तो आप लोगों का भी हो जाएगा। Yeah. एनी अदर क्वेश्चन? How to understand? 9-10 की बुक्स भी पढ़नी चाहिए कि नहीं? Okay, so I would say that 9-10 से जितना मुझे याद है कोई 1-2 MCQs आए थे. So I don't think so you have to read them for 1-2 MCQs. ज़्यादातर they focus on your intermediate. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है and if you read that's well and good because maybe आप लोग MBBS के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, so it's good if you clear a concept, but it's not necessary for that 1-2 MCQs. अगर आपको बाकी सब आ रहा है and वो 1-2 MCQs आप अपने prior knowledge से attempt करते हैं या फिर अगर आपको याद भी नहीं आ रहे तो आप उनको छोड़ देते हैं, that's completely fine. हमारे टेस्ट में आई गेस काजी मुझे जितना याद है आई गेस 1-2 MCQ ही आए थे, उससे ज्यादा नहीं आया था 9-10 से, बाकी सारे इंटरमीडिएट से ही आता है. क्योंकि आप लोगों को क्लियर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफएससी के जो कॉन्सेप्ट है उनमें मैट्रिक का भी आप लोगों को क्लियर हो जाता है. एग्जैक्टली सेम चीजें होती है ना, तो ज्यादा मतलब मैट्रिक पे करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, वो नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह से हम उसको. अच्छा, सो नेगेटिव मार्किंग का यह सीन है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाता है, 1 मार्क मिल जाता है, और अगर आप उसको गलत मार्क करते हैं तो -0.25 होता है. या 0.25 मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स नल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. सो मेरे हिसाब से तुक्का मारना बेहतर है. अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्का मारें तो आप ज्यादा फायदे में होंगे, क्योंकि अगर आपका गलती से वो क्वेश्चन सही हो जाए तो आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा. अगर वो गलत हो जाए तो -0.25 होते हैं, जो कि इतना ज्यादा नुकसान मतलब फायदे नहीं होगा. मतलब आप 4 क्वेश्चन तुक्के गलत मारेंगे और 1 तुक्का सही लगेगा तो वो बराबर हो जाएंगे. सो इसलिए तुक्का मारना बेहतर है. वो हम स्किप कर सकते हैं एक्सक्यूज जो नहीं आ रहा है. Yeah, that was what I was going to cover now. Like one of my, मैंने तो नहीं किया था, but one of my friends had done this strategy. आप एक और strategy use कर सकते हो कि जैसे कि we have a kind of rough idea that जैसे 60% हमारे साइंसेस का काउंट होता है. So what my friend had done was that कि उसने उसको जितने भी MCQs आते थे उसने उतने अटेम्प्ट किए जिनमें शी वाज लाइक 100% श्योर के यही होंगे. सो शी अटेम्प्टेड ऑल ऑफ देम एंड बाकी का जो है उसने छोड़ दिया साइंस पोर्शन में, बिकॉज वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो सब उसने छोड़ दिया. बाकी के जो जिसमें वो 100% श्योर थी, वो ऑलरेडी 60-65% बना रहे थे,
So if you're sure with many of the MCQs you have done, and if they make like 65-70% of your like a science portion, then you can leave them because उससे सिर्फ आपका एक ही मार्क जाएगा. अगर आप उनको अटेम्प्ट करते हो और गलत अटेम्प्ट करते हो तो एक मार्क के साथ 0.25 भी जाता है, 1.25. So it depends upon your strategy and your thinking कि आप किस तरह से उस चीज को you go for it. I mean, जैसे गाजी ने बोला, you can go for तुक्का as well because कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, but still there is one thing, एक यूके टेस्ट में पॉइंट नंबर से बहुत मैटर करती है, that's also right. So आप उसका सोच के you can leave the question if you are too much confused के मुझे बिल्कुल भी नहीं आता. But आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, you can do the elimination method and go for a tukka, so that you can be in benefit. Depends upon the question and your strategy. Yes, but आपका फायदा तो है ज्यादा होगा, I guess. Yeah. Okay. Next question. मैथ्स हमारे इंटरमीडिएट में तो एग्जाम में मैथ्स नहीं होती, पर भी मैथ एक्शन आती है. क्वेश्चन रिपीट करें जरा, आवाज नहीं आ रही. हमारे इंटर फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल में तो मैथ्स नहीं होती, पर टेस्ट में फिर क्यों मैथ्स आती है? मैथ्स असल में आप लोगों की रीजनिंग टेस्ट करने के लिए होती है ना, क्योंकि मैथ्स में डिसीजन मेकिंग होती है और आप लोगों ने इमीडिएट डिसीजंस लेने होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए. सो नई नई स्ट्रेटजीज आप डिस्कवर कर सकती हैं मैथ्स में. एक तरीके से हल नहीं होता, क्वेश्चन कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है. सो नर्सिंग में भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, आप सिनेरियोस को डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. इस वजह से मैथ इंक्लूड किया जाता है ताकि आपके ऑप्शंस इंक्रीज किया जा सके, मतलब आपकी थिंकिंग को ब्रॉडर किया जा सके. True. Because math is very important component. No? So like you use it in your daily life everywhere. Even when you come here, in your different subjects, you use basic concepts of mathematics. So maths is really important in our daily lives. That's why it is included in the test, but not in our intermediate, unfortunately. All right, ma'am. So I have one question. Assalamu alaikum, everyone. So I have some fighting in the mid section. So, like, what was your approach toward learning the main method? So now tell me about both. What was your approach? How we approach to crack the test? Yeah. Which source you recommend us? Yes, Ghazi, if you answer it first, then I'll add up. आप स्टार्ट करें खुद. Okay, so for maths, I would say that मेरा actually क्या हुआ था कि I had applied for FAS test पहले. So उसके लिए मैंने अच्छी खासी तैयारी की थी mathematics की. I had read SAT books, then I had read Panda maths. So मैंने कोई advanced level के maths भी किए हुए थे. So when I came for BSc test, it was really easy for me because मैंने already advanced maths भी किया हुआ था. So BSc में तो बहुत basic maths आता है. So that was how I had prepared for it. But जितना मुझे idea है, as I already mentioned, you can go for the Panda maths, but don't go into so much detail. इतना complicated नहीं आता. Just go through the basic concepts that are present inside that Panda maths. And you can also go for math-wise. There are books math-wise where of class 8 and like class 7th. The easy concepts are discussed there. So you can like go through them and like clear concepts from there. Over to you guys. And मेरा ये सीन था कि मैंने MBBS का टेस्ट दिया था AKU में, और वहाँ उसके लिए मैंने मैथ्स की तैयारी करी थी सेट पांडा से. सेट पांडा मैथ्स को मैंने 2-3 दफ़ा क्लियर कर लिया था. सो BSc का टेस्ट बहुत बेसिक आया था, इस वजह से तो मुश्किलात नहीं हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैथ्स में फुल आया था. Maths was easy. सो मैथ्स की तैयारी मेरे हिसाब से आपको 7, 8 और 9, 10 ये 4 years की बुक्स आप लोग सही से कर लेना, आप लोगों का मैथ्स इजीली क्लियर हो जाएगा. 7, 8, 9, 10. That's good. Thank you so much. I have a question.
यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो अभी मैं इन 2 महीनों में कैसे कवर करूँ ये सारा, तो आप इस बारे में थोड़ा बता दें, और टेस्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा बता दें, मुझे इतना आइडिया नहीं है बीएसएन के बारे में। पैटर्न आप करना चाहिए इसको सर। So the test pattern is like you have got 5 subjects. You have biology, chemistry, physics, mathematics, and English. So you've got 20 MCQs for biology, 20 for chemistry, 20 for physics, 20 for maths, and then it comes the English comes, which is comprised of 60 MCQs. So ये pattern होता है, आप सबसे पहले वहाँ पर जाते हो, so you get English portion first, right? Or sciences portion first, Nazi? I don't remember. English portion, ma'am. Yeah. Okay, so the English portion first, and when you attempt to 60 MCQs, then you get another booklet. Like it's not CBT, it is paper-based test. So you get another booklet where you have the 3 sciences and the maths portion. So then you attempt them. That's how it is. I have a question. Oh, can you wait a second, please? Sorry, but I guess No problem. if you can talk about how to manage the time and prepare in these 2 months, as Bunny was asking. Okay, so टाइम मैनेजमेंट आई गेस आपको ये करना चाहिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने चाहिए। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अभी रखने दें। आगे अगर टाइम हो तो आप क्लियर कर लें, तो वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। मतलब तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर सही से कर लें, मैथ्स में मैं बात कर रहा हूँ। और इक्वेशंस क्वाड्रेटिक तो आई गेस नहीं आते, लीनियर इक्वेशंस आते हैं। और प्रोबेबिलिटीज ये चैप्टर सही से कर लेना। एंड और इसके अलावा मेरे पास शायद लिस्ट होगी, वो ग्रुप में सेंड करा देंगे, तो इनको सही से प्रिपेयर कर लें बेसिक चीज़ों को। बाकी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती भी नहीं है, और अगर आए तो भी वो आप स्किप कर सकते हैं। Yeah, and as this one person indicated that we have 5 subsections inside English again, but उसके पीछे आप लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारे almost related to grammar concepts होते हैं। तो if your grammar is clear, आप easily उन सब को attempt कर सकते हो। And as Bunny said that she's a university student, so अगर आप अपने उन studies से 2 hours भी निकाल दे per day, 1.5 hour maybe per day, then it's a big input. Small steps can make a big difference. Don't worry, हो जाएगा। थैंक यू मैम। You're welcome. मैम सीट के बारे में बता दे, तो मेल की कितने सीट है और फीमेल की कितने सीट है? तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा होता है कि एक यहाँ से बहुत ज्यादा होता है। तो मेल्स के लिए ऑलमोस्ट 25 सीट्स होते हैं आई गेस, और फीमेल्स के लिए 135 होते हैं। सो मेल्स की कंपटीशन थोड़ी सी टफ होती है, और उनका कट ऑफ भी डिफरेंट बनता है। Cut off high level, yeah. यस, मेल्स का कट ऑफ इस साल था कोई 65% आई गेस, एंड फीमेल कट ऑफ था कोई 55%। सो 10% का डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। सो मेल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जेंडर और इस साल बता रहे हैं कि मेल के सीट थोड़े ज्यादा होंगे, ये सही है कि गलत है? मेल के तकरीबन 25 है ना, 35 हो रहे हैं, और फीमेल के आई थिंक 50 हो रहे हैं। कोई रैंडमली मुझे बताया था। मैंने तो नहीं सुना है ऐसी कोई खबर, अगर सुनेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। मुझे भी कोई आइडिया नहीं, I'm sorry. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Yes. तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो Sure. हाँ मैम, वन अनदर क्वेश्चन। यस, अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बता दे तो हम कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं?
Yes, Isaac, go for it. यस जाना आपको Okay, so for time management, I would give you a suggestion, and that is what distracts us the most is that we are not able to prioritize that what's important today and what's not. आप हर दिन के हिसाब से आप प्रायोरिटाइज करो कि आज के दिन के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड कौन सी चीज कम इम्पोर्टेंट है. Like if you are preparing for any entry test, what could be the important thing for you in those like preparation era? That is preparing for the test, right? Instead of that, what we do is that we go and watch a movie or we Instagram scrolling, we do Instagram scrolling. So आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठो, आप एक टाइम जब अपने लिए निकालते हो कि इस टाइम पे मुझे स्टडी करनी है, तो आप मोबाइल को तो एटलीस्ट साइड रख लो, उसको आप साइलेंट कर लो, बिकॉज दैट रिंगटोन दैट इज ओवर देयर, दैट आपको मैसेज आया या कॉल आई, दैट थिंग डिस्ट्रैक्ट्स अ लॉट. तो आप उसको साइलेंट करके साइड में रख दो, एंड इफ यू सिट then you will be able to easily manage your time. Why your time is not being managed? Because हम कुछ करते ही नहीं है. Actually we sit down, we say कि हम पढ़ रहे हैं, but suddenly we take the phone and हमें पता ही नहीं चलता and घंटे गुजर गए होते हैं. So the tip to manage your time is that prioritize that what's important at the moment and what's not. So when you study, put your phone aside, silent it, and don't look at it at all. And sit down and study your stuff. So when you're done with that, then take your phone. That's how you manage your time, I guess. यस एंड इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि मतलब रात को अपनी प्लानिंग कर लें कि कल आपने क्या करना है. ठीक है? मुझे जो चीज है सबसे ज्यादा जिस चीज ने फायदा दिया था वो ये था कि मैं एक दिन पहले रात को मैं मतलब गोल क्लियर करता था कि कल मैंने क्या क्या क्लियर करना है. बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ना अपने चैप्टर्स में आइडेंटिफाई करके रखता था कि कल मैंने ये चैप्टर्स क्लियर करने हैं, और मैं वो चैप्टर्स क्लियर करने की कोशिश करता था और गोल अचीव करने की कोशिश करता था. और इस तरह जब आप गोल सेट करते हैं ना, तो आपको अगर गोल पूरा ना हो तो मतलब आप अपने लिए कोई सजा या आप गोल पूरा करें तो अपने लिए कोई ट्रीट वगैरह का वो करें ना, इंतजाम करें, तो ये बहुत ज्यादा वो होता है, फायदेमंद होता है आपके लिए. I do the same. Whenever for example, I said मुझे unit complete करना है, and when I complete them, I listen to my favorite song for 2 to 3 minutes, and then I resume. So you can do the same. आपको जो चीज अच्छी लगती है, you can give yourself as a treat. तो इस तरह से आपका वो भी build होगा, interest भी build होगा, और आप कर पाओगे. ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि ना केमिस्ट्री का जो होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है और फिजिक्स का, अगर आप उन दोनों के बारे में बता दें तो अच्छा होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो फिजिक्स में तो ये सीन है ना, फिजिक्स में जो बेसिक फार्मूलाज हैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले करने की जरूरत नहीं है. बेसिक फार्मूलाज जो हैं, न्यूटन के लॉस फलां जितना जो सिंपल चीजें हैं वो चीजें सही से क्लियर कर लेना. और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट क्या, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मसलन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये तो बेसिक टाइप के फार्मूलाज है ना, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V. इस तरह के जो फार्मूलाज हैं और इस तरह के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सही से क्लियर कर लें यार, तो कोई डिफरेंट चीज रॉकेट साइंस नहीं आती, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आता. स्पेशली BSc के टेस्ट तो बहुत ही सिंपल आता. बहुत ज्यादा सिंपल आते हैं. जैसे if I give you an example, they ask that which one is a good conductor, CH3COOH or HCl. I had noted in my notebook because मुझे याद थे कि उस टाइम पे आए थे. So such sort of basic concepts are asked. So definitely HCl because that is strong acid, तो वही ज्यादा good conductor होगा. So you can like guess that how easy it is, how basic it is. बस आपका concept clear होना चाहिए, nothing more than that. जैसे half life आता है physics में. I remember that जो forgot the formula, but there was a very basic formula in physics जिसका आया था. I was really shocked कि ये आया. I thought those difficult derivations would come, but ऐसा कुछ आता नहीं है. So don't panic, easy आता है. Just easy formulas, basic formulas that are used everywhere in physics. Not go in depth of those complicated ones that confuse you.
लास्ट ईयर मैंने वो किया था ना, मैं अपियर हुई थी टेस्ट में, तो मेरा केमिस्ट्री का जो था उसमें मार्क्स कम आए थे, में तो अच्छे थे लेकिन केमिस्ट्री में कम आए थे, तो केमिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा गाइड करिए। सो केमिस्ट्री के हवाले से मैं गाइड करूंगा कि केमिस्ट्री में जो स्पेशली जो मतलब हाइड्रोकार्बन्स वगैरह और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, उसमें आपने सारी चीजें नहीं करनी है। उसमें चीजें ये करनी है कि जो रिएक्टेंट है और फाइनल जो प्रोडक्ट है ना, वो आपको आना चाहिए। मतलब कि जो रिएक्टेंट आप यूज करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, इतना आपको है ना, मोर देन इनफ है। पूरा मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म के पीछे लगे रहते हैं और सारा टाइम वही मैकेनिज्म खा जाता है, और बाकी चीजें कवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। सो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो रिएक्टेंट है वो और उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, उतनी हद तक आपको आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके लिए मैं गाइड दूंगा कि उसके लिए आप लोग निमोनिक्स बनाएं। बेसिक निमोनिक्स होती हैं, वो आप लोग बनाएंगे तो मतलब इजीली आप लोगों को कवर हो जाएगा और मतलब दूर तक आपको याद रहेगा। Okay, so Samrina, if you have already appeared in the test and आपने कहा कि आपका केमिस्ट्री में आपके केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए थे, so I would say that कि you do reflect back और आप सोचें कि आपके केमिस्ट्री के कौन से कंसेप्ट्स में आपके मतलब वीकनेस थी जिसकी वजह से आपके नंबर्स कम आए. सो इफ यू आइडेंटिफाई दैट थिंग, इफ यू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. तो फिर आप जब रिफ्लेक्ट बैक करें और जिन कंसेप्ट्स में आपको लगता है कि वीकनेस थी, यू रिवाइज देम. ठीक है. बाकी आप मतलब कंफ्यूजिंग ऐसा नहीं आता. आप अगर अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन. मेरा लास्ट ये कि एक बंदा कितने टाइम मतलब कितनी दफा अप्लाई कर सकता है प्रोग्राम के लिए जैसे? 2 times. 2 times. ओके, थैंक यू सर. Next question. Yes, Nilofer Khan. मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस आते मैंने सुना है, लेकिन वो कहते कि बहुत टफ रिएक्शंस आते, तो हम सारा बुक सेकंड ईयर के सारे इक्वेशंस करनी चाहिए कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं आता, बिल्कुल सिंपल आती हैं. कोई टफ इक्वेशंस नहीं आती, कोई टफ रिएक्शंस नहीं आती. जैसे कि गाजी सर एंड आई सर बहुत ही बेसिक आते हैं. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई एक रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, रिएक्टेंट्स क्या थे और प्रोडक्ट क्या आया. बीच में जो कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना इंटरमीडिएट के बुक्स में, दैट नेवर कम्स एट ऑल. सो डोंट वरी अबाउट दैट. You're welcome. इसकी एक्सपेक्टेड डेट है 4 July. और जुलाई वाली। And 5th is for MBBS, yes, right? मैम Yes. मैम अगर 2 साल हम बीएसएन के लिए अप्लाई करें, अगली दफा 2 साल एमबीबीएस के लिए कर, ये कर सकते हैं नहीं? Yes, if you haven't applied for MBBS along with BSN, you can apply because वो separate count होता है ना, so you can. तो 4 साल जाया करके 2 कर सकते हैं. So you can do that. ओके मैम, थैंक यू. Ma'am, would you like to tell me about English portion? We talk about the physics, chemistry, math. So would you please talk about English? What was your approach and how we use resource which will be effective for us? Okay, so my experience was that, as I already mentioned, I had applied for FAS test. So for that, I had read SAT English and all of those advanced English. So for me, BSN English was really easy. So according to my experience, I would recommend that don't confuse yourself again. That's the same thing. Please don't confuse yourselves in those confusing concepts,
go for the simple ones and the basic ones. That's what they test. जैसे मैंने already mention किया था, रेन एंड मार्टिन का एक ग्रामर का बुक होता है. If you go through that book, you can easily ace the test because वहाँ पर simple parts of speech आते हैं, simple grammar rules आती हैं, simple sentence structures कैसे बनते हैं English में, that comes simple आपके tenses test होते हैं. So if you have the idea that how sentences are built and what is used where, punctuations, spellings, sentence structures, parts of speech, tenses, you can easily ace the test. And उसमें भी कोई ऐसा वैसा complicated नहीं आता, बहुत ही basic आते हैं, which we normally use in our daily lives, talking with each other. अगर आपके पास PDF फॉर्म है तो ग्रुप में शेयर कर दे काइंडली मैम. Sure, I'll search out. If I do have, I'll share with you guys. ओके थैंक यू. तो अस्सलाम वालेकुम सर. तो सर मेरा क्वेश्चन ये सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप. तो किसी ने ये नहीं पूछा कि इसका जो सिनेरियो है वो किस तरह होता है. लाइक हम पहली बार दे रहे हैं तो एक MBBS का एक ही पेपर होता है ना, MCQs टाइप का. लेकिन यहाँ पे BSN में डिफरेंट पोर्शंस होते हैं तो उसको मतलब हम अपनी विश के साथ साथ वो पोर्शन करते हैं कि नहीं, उसका कोई स्टेप बाय स्टेप वो होता है. पहला क्वेश्चन है. दूसरा ये है कि प्रिपरेशन को सही अकॉर्डिंग टू माय प्रिपरेशन, मेरी प्रिपरेशन अभी तक तो सही है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारा MBBS में इंटरव्यू में ना हो तो हम BSN चूज करके वहां से MBBS के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं सर. क्योंकि मैंने जहाँ तक सीनियर्स को अप्रोच किया है वो कह रहे हैं कि अगर आपने BSN से MBBS में स्विच किया तो somehow वो AKU वाले आपने जितना टाइम स्पेंड AKU में किया है तो उस मुताबिक आपसे वो एक्सपेंडिचर्स उठाते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा बताएं सर, आपकी मेहरबानी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट के हवाले से मैं बताऊंगा कि MBBS और BSN में मतलब पोर्शन वाइज का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट पेपर्स आपके हाथ में दिए जाएं. पोर्शन का मतलब ये है कि बायोलॉजी का हेडिंग दिया होता है, नीचे बायो के क्वेश्चन होते हैं, फिर केमिस्ट्री का हेडिंग होता है, केमिस्ट्री क्वेश्चन. ये तो MBBS के पेपर में भी सेम यही सीन होता है. सही है. सो इंग्लिश का पोर्शन डिफरेंट से आता है, डिफरेंट पेज में आता है, पहले दिया जाता है ना. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है MBBS और BSN के टेस्ट का. सो बाकी चीज़ें तो तकरीबन सेम ही हैं. और पैटर्न के हवाले से मैं बताता चलूँ किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है. सो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे बेहतर आता है, वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. जैसे मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी आती थी तो मैं बायोलॉजी सबसे पहले अटेम्प्ट की थी. उसके बाद मुझे मैथ्स अच्छा आता था तो मैथ्स मैंने उसके बाद अटेम्प्ट किया था. उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, और MBBS के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग या साइंस रीजनिंग मैंने लास्ट में किया था. और BSN के पेपर में लास्ट में आई गेस मैथ्स ही होता है, उसके अलावा साइंस रीजनिंग तो नहीं होता ना. तो अपने हिसाब से अरेंज करें, आपको जो सब्जेक्ट सबसे बेहतर आता है वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें. और सबसे मतलब कम आपको जो सब्जेक्ट आता है उसको लास्ट में रखें ताकि टाइम ज़्यादा आपका कंज्यूम ना हो. सही है. और दूसरी क्वेरी आपकी कि MBBS में अगर सिलेक्शन ना हो, BSN में आके नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना, तो ये आप लोग कर सकते हैं. आप MBBS में BSN में यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फाइल मतलब मौजूद हो, अगर आप सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो. और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको फीस वापस करनी होती है. एक साल का जो आपका एक्सपेंडिचर बनता है ऑलमोस्ट कोई 14-15 lakhs बनता है, वो आपको वापस करना होता है. Yes, and Aslam, you talked about the patron. तो सबसे पहले तो आपको एक बुकलेट मिलता है जिसमें आपके 60 MCQs ऑफ इंग्लिश होते हैं. वो आप अटेम्प्ट करते हो, वो आप सबसे कलेक्ट किया जाता है एंड देन यू गेट अनदर बुकलेट जिसमें आपके 4 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. तो उनको आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. जैसे गाजी ने बोला कि जो आपको आसान लगता है वो आप पहले करते हो, जो आपको मुश्किल लगता है वो आप एंड के लिए छोड़ते हो. And that's according to your wish. So that's how it comes, and your query regarding MBBS is already cleared. Okay, Miss. क्लास
अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अभी डेली कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कि जैसे कि हमारे पास 4-5 बुक्स हैं तो डेली बेस पे हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर काफी है कि नहीं? More than enough, I guess. Look at your plannings कि आपने कितना कवर किया है और आपके कितने रहते हैं. That depends upon you. Like if it comes to your daily routine, don't let anyone to make that routine for you. My suggestion would be that make your routine by yourself. आप खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप एक दिन में कितना डाइजेस्ट कर सकते हो, कितना अपने अंदर आप डाल सकते हो और कितना आप खुद को टाइम दे सकते हो. सो डू इट अकॉर्डिंग टू व्हाट आपके पास मतलब रहते हैं, जितना आपका रहता है कोर्स, एंड आप कितना पर डे पढ़ सकते हो. ऐसा ना हो कि बाय द एंड ऑफ द डे आप पूरा मतलब एग्जॉस्ट हो जाए. डोंट डू लाइक दैट. अगर आप जैसे कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है ना, तो आप 3 सब्जेक्ट्स को एक दिन में, 2 हार्ड सब्जेक्ट्स को एक दिन में रख सकते हो. नो नीड टू डू ऑल ऑफ देम इन वन डे. एंड जरूरी नहीं है कि अगर आप सबको एक दिन में रखते हो, नो नीड टू कंप्लीट फुल चैप्टर्स. यू कैन लाइक डू हाफ ऑफ ईच चैप्टर. एंड इस तरह से आप अपना रूटीन खुद बनाओ. आई वुड सजेस्ट यू अपने हिसाब से. कि पंजाब बोर्ड के वो बुक ज्यादा अच्छी होती है कि केपी के बोर्ड के ज्यादा बुक के होते हैं, और फर्स्ट ईयर के हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ज्यादा पढ़नी चाहिए कि 9th-10th की ज्यादा पढ़नी चाहिए? यस, 9th-10th के तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 9th-10th के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं. ठीक है. सो और बोर्ड वाइज तो इट्स अप टू टोटली अप टू यू. जो जो किताब आपको सबसे बेहतर समझ में आती है उससे पढ़ने की कोशिश करें. मुझे फेडरल से बहुत अच्छी समझ में आती थी और उनके वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता था, तो मैं फेडरल की बुक्स को यूज करता था. इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको अपनी बोर्ड वो से समझ आ रहे हैं ना, सो गो फॉर देम. अगेन मैंने ऑलरेडी बोला था कि खुद को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है विद डिफरेंट बोर्ड बुक्स. आप अपने बोर्ड के बुक्स के साथ जा सकते हैं. एंड क्या Thank you to you as well, Riaz bhai. Thank you so much.
Thank you so much, ma'am, sir. Allah Hafiz. this opportunity. Thanks. Thank you. Thank you so much. It's a wonderful session. Thank you. Moni Khan, you're asking that I have no idea about test method. So you can contact the basic आते हैं, which we normally use in our daily lives, talking with each other. अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म है तो ग्रुप में शेयर कर दे काइंडली मैम. Sure, I'll search out. If I do have, I'll share with you guys. ओके थैंक यू. तो अस्सलाम वालेकुम सर. तो सर मेरा क्वेश्चन ये कर रहे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि इसका जो सिनेरियो है वो किस तरह होता है. लाइक ये हम पहली बार दे रहे हैं तो एक एमबीबीएस का एक ही पेपर होता है ना, एमसीक्यूज टाइप का, लेकिन यहाँ पे बीएसएन में डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, तो उसको मतलब हम अपनी विश के साथ साथ वो पोर्शन करते हैं नहीं, उसका कोई स्टेप बाय स्टेप वो होता है. पहला क्वेश्चन है. दूसरा ये है कि प्रिपरेशन को सही अकॉर्डिंग टू माय प्रिपरेशन, मेरी प्रिपरेशन अभी तक तो सही है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारा एमबीबीएस में इंटरव्यू में ना हो तो हम बीएसएन चूज करके वहां से एमबीबीएस के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं सर. क्योंकि मैंने जहाँ तक सीनियर्स को अप्रोच किया है वो कह रहे हैं कि अगर आपने बीएसएन से एमबीबीएस में स्विच किया तो समहाउ वो एकयू वाले आपने जितना टाइम स्पेंड एकयू में किया है तो उस मुताबिक आपसे वो एक्सपेंडिचर्स उठाते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, आपकी मेहरबानी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट के हवाले से मैं बताऊंगा कि एमबीबीएस और बीएसएन में मतलब पोर्शन वाइज का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट पेपर्स आपके हाथ में दिए जाएं. पोर्शन का मतलब ये है कि बायोलॉजी का हेडिंग दिया होता है, नीचे बायो के क्वेश्चन होते हैं, फिर केमिस्ट्री का हेडिंग होता है, केमिस्ट्री क्वेश्चन. ये तो एमबीबीएस के पेपर में भी सेम यही सीन होता है. सही है. सो इंग्लिश का पोर्शन डिफरेंट से आता है, डिफरेंट पेज में आता है, पहले दिया जाता है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एमबीबीएस और बीएसएम के टेस्ट का. सो बाकी चीजें तो तकरीबन सेम ही हैं. और पैटर्न के हवाले से मैं बताता चलूँ किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है. सो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे बेहतर आता है, वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. जैसे मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी आती थी तो मैं बायोलॉजी सबसे पहले अटेम्प्ट की थी. उसके बाद मुझे मैथ्स अच्छा आता था तो मैथ्स मैंने उसके बाद अटेम्प्ट किया था. उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, और एमबीबीएस के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग या साइंस रीजनिंग मैंने लास्ट में किया था. और बीएससीएन के पेपर में लास्ट में आई गेस मैथ्स ही होता है, उसके अलावा साइंस रीजनिंग तो नहीं होता ना. तो अपने हिसाब से अरेंज करें, आपको जो सब्जेक्ट सबसे बेहतर आता है वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, और सबसे मतलब कम आपको जो सब्जेक्ट आता है उसको लास्ट में रखें ताकि टाइम ज्यादा आपका कंज्यूम ना हो. सही है. और दूसरी क्वेरी आपकी कि एमबीबीएस में अगर सिलेक्शन ना हो, बीएससीएन में आके नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना, तो ये आप लोग कर सकते हैं. आप एमबीबीएस में बीएससीएन में यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फाइल मतलब मौजूद हो, अगर आप सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो. और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको फीस वापस करनी होती है. एक साल का जो आपका एक्सपेंडिचर बनता है ऑलमोस्ट कोई 14-15 lakhs बनता है, वो आपको वापस करना होता है. Yes, and Aslam, you talked about the pattern. तो सबसे पहले तो आपको एक बुकलेट मिलता है जिसमें आपके 60 MCQs ऑफ इंग्लिश होते हैं, वो आप अटेम्प्ट करते हो, वो आप सबसे कलेक्ट किया जाता है, एंड देन यू गेट अनदर बुकलेट जिसमें आपके 4 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. तो उनको आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. जैसे गाजी ने बोला कि जो आपको आसान लगता है वो आप पहले करते हो, जो आपको मुश्किल लगता है वो आप एंड के लिए छोड़ते हो, and that's according to your wish. So that's how it comes, and your query regarding MBBS is already cleared. Okay, miss.
मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अभी डेली कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कि जैसे कि हमारे पास 4-5 बुक्स हैं तो डेली बेस पे हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर काफी है कि नहीं? More than enough, I guess. Look at your plannings कि आपने कितना कवर किया है और आपके कितने रहते हैं. That depends upon you. Like if it comes to your daily routine, don't let anyone to make that routine for you. My suggestion would be that make your routine by yourself. आप खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप एक दिन में कितना डाइजेस्ट कर सकते हो, कितना अपने अंदर आप डाल सकते हो और कितना आप खुद को टाइम दे सकते हो. सो डू इट अकॉर्डिंग टू व्हाट आपके पास मतलब रहते हैं, जितना आपका रहता है कोर्स, एंड आप कितना पर डे पढ़ सकते हो. ऐसा ना हो कि बाय द एंड ऑफ द डे आप पूरा मतलब एग्जॉस्ट हो जाए. डोंट डू लाइक दैट. अगर आप जैसे कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है ना, तो आप 3 सब्जेक्ट्स को एक दिन में, 2 हार्ड सब्जेक्ट्स को एक दिन में रख सकते हो. नो नीड टू डू ऑल ऑफ देम इन वन डे. एंड जरूरी नहीं है कि अगर आप सबको एक दिन में रखते हो, नो नीड टू कंप्लीट फुल चैप्टर्स. यू कैन लाइक डू हाफ ऑफ ईच चैप्टर. एंड इस तरह से आप अपना रूटीन खुद बनाओ. आई वुड सजेस्ट यू अपने हिसाब से. कि पंजाब बोर्ड के वो बुक ज्यादा अच्छी होती है कि केपी के बोर्ड के ज्यादा बुक के होते हैं, और फर्स्ट ईयर के हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ज्यादा पढ़नी चाहिए कि 9th-10th की ज्यादा पढ़नी चाहिए? यस, 9th-10th के तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 9th-10th के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं. ठीक है. सो और बोर्ड वाइज तो इट्स अप टू टोटली अप टू यू. जो जो किताब आपको सबसे बेहतर समझ में आती है उससे पढ़ने की कोशिश करें. मुझे फेडरल से बहुत अच्छी समझ में आती थी और उनके वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता था, तो मैं फेडरल की बुक्स को यूज करता था. इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको अपनी बोर्ड वो से समझ आ रहे हैं ना, सो गो फॉर देम. अगेन मैंने ऑलरेडी बोला था कि खुद को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है विद डिफरेंट बोर्ड बुक्स. आप अपने बोर्ड के बुक्स के साथ जा सकते हैं. एंड क्या Thank you to you as well, Riaz bhai. Thank you so much.
Thank you so Thank you much, for ma'am. giving us Allah Hafiz. this opportunity. Thanks. Thank you. Thank you so much. It's a wonderful session. Thank you. Moni Khan, you're asking that I have no idea about this method. So you can contact us on WhatsApp. We can explain the procedure to you. Don't worry about that. If your queries are not clear here.